Praise the name of the Lord. Hallelujah. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name. सबको यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं. प्रभु आप सबको आशीष दे. Hallelujah. We praise the Lord for this evening. We praise the Lord for all His provision, His love, kindness, mercy, for His goodness towards us. We bless His holy name. Hallelujah. We glorify His name, glorify His name. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Shalom to every one of you. Hallelujah. आइए प्रार्थना करें. Lord, we glorify your name. Lord, we magnify you. Lord, we exalt you. Lord, we lift you up. We bless you this evening, Lord. Send your presence. Send your holy anointing on us, Lord. Send your holy anointing, Lord. Send your blessed presence, Lord, as we dig through your word, as we delve deeper. Lord God, may you shed the light. May you shed the light of your glory, of your presence, that we can learn the deep things that are buried, profound things that are hidden. For deep and profound mysteries, they are not on the surface. They are buried deep beneath. So Lord, in Jesus' name, anoint us that we delve deeper, that we dig deeper, Lord. And also, Lord, that we hate superfluous stuff, that we just hate to live on the surface, that we hate to live mediocre life, that we hate to live mundane. Lord, that you give us resolve for deeper things of the Spirit. खुदावंद हमारे दिल में ऐसा काम कर कि हम बनावटी चीज़ों से नफ़रत करें, दिखावे की चीज़ों से नफ़रत करें, और शैलो जो है, बहुत सतह के ऊपर है, उसे नहीं खुदावंद, तेरी गहरी रूहानी चीज़ों की खोज करने वाले हों. ऐसा अभिषेक दे खुदावंद, तेरी गहराई को खोजने का. तेरी गहराई की तह में जाने का खुदावंद अभिषेक कर. Lord, give heart in Jesus' name to delve deeper. Lord, we pray for Pastor Jinder Kumar John for his financial situation, the debt that he has to pay. खुदावंद तेरे दास की सहायता करें, मार्ग खोलें खुदावंद, फाइनेंशियल आशीषित करें खुदावंद. हालेलुया. खुदावंद जितने लोग सुन रहे, मैं इनमें से एक को तेरे हजूर में लाता हूँ. Lord, I bring Devinder Kollar's family before you in Britain, Lord. Her husband and her household, may you cover them under your blood. I bring Dorothy Thapa, Lord, before you under your blood. Ruby Sanghera and her family, and her sister Taljinder and her family under the blood. And Amrish Kumar and his household under your blood. Amarjit Kaur and her household. Lord, I bring Mr. Vinod Christian from Canada, who is online with us, his household under your blood. Bring Karamjit Kaur under your blood, Lord Jesus. Ajay Kaler under your blood. Lord Jesus, I pray for Rosie Singh, for your hand to be upon her. I pray for Pastor Rajinder Kumar John once again. Lord, you are greater than our needs. Bless this man. Bless Sabi Surjit and his household, I pray, Father. Stretch forth your hand over Dorothy Thapa. I cover Dorothy Thapa under the blood of the Lamb. I pray for Tanuja Seth, that you will touch her life. Bless her family, her household, Lord. I release your anointing and favor over them. And I pray for Jasveer Singh Surinder. Bless him and his household. Tera dhanyavad ho. Lord, I pray for Brother Kundan Shah from Delhi. Bless him, bless this man's household. Bless everything that he does, Lord. Stretch forth your hand upon him. Hallelujah.
प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन। हालेलुया। खुदावंद रेनू कथूरिया को भी तेरे लहू में छिपाते हैं। ब्लेस हर लॉर्ड। Lord, I release your presence and your anointing over her and her household. In Jesus' name. Amen. अगर आपको याद होगा तो आई थिंक कि 3-4 सेशन हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको सबसे पहले स्क्रिप्चर दिया था यशाया नबी की पुस्तक 11 अध्याय के पहले वचन से। प्लीज़ उसे हिंदी में प्रिंट करेंगे। यशाया 11 अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन हिंदी में देख के प्लीज़ प्रिंट कीजिए। यशाया नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय। हालेलुया। आइजाया चैप्टर नंबर 11 verses 1 to 3. Let me read it for you. प्रभु क्या कहता है? And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse. जस्सी के स्टेम में से एक रॉड निकलेगी। And branch shall grow out of his roots. और उसकी जड़ों में से एक शाखा निकलेगी। ब्रांच शामेक हिब्रू वर्ड है, जिसे बाद में हम देखते हैं नज़रोत का नाम भी दिया गया। नज़रोत ऑल्सो मीन्स ब्रांच। नासरत नगर के नाम का मतलब था सिटी ऑफ द ब्रांचेस, टहनियों का, शाखाओं का शहर। ये भविष्यवाणी यशे के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलेगी। डाली की जगह वर्ड जो है दैट इज़ द वर्ड इज़ रॉड। ऑफ कोर्स हिब्रू में बहुत प्रोफाउंड चीज़ें हैं ये। तो ये जो भविष्यवाणी है ये एक इम्पॉसिबिलिटी को दिखाती है। परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है उस चीज़ के लिए जो इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। क्योंकि ये जो दरख्त है, ये ट्री जो है, ये ख़त्म हो चुका है। इट विदर्ड, फिनिश हो गया ये ट्री। इसकी केवल जड़ें बाकी हैं और ठूंठ है। यहोवा परमेश्वर एक इम्पॉसिबल सुपर, ये पॉसिबल कैसे है? सुपर नेचुरली। नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है, भौतिक रीति से ये असंभव है जो परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है अपने नबी के द्वारा। इज़राइल रूपी वो वृक्ष जो यहोवा ने रोपा था, लगाया था, वो करप्ट हो गया, वो भ्रष्ट हो गया। उस वृक्ष ने फल पैदा नहीं किया। मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको वाइन के ऊपर मैसेज दिया था जिसमें मैंने बताया था कि जहरीले उसको अंगूर लगे हैं और उसे ऐसे अंगूर लगे हैं जिसके अंदर सांपों का जहर है। इफ़ यू रिमेंबर दैट मैसेज, इट वॉज पावरफुल मैसेज। तो ये जो ट्री है इसके अंदर जीवन ख़त्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर कहता है देयर शैल कम फोर्थ ए रॉड आउट ऑफ द स्टेम ऑफ जेसी, हालेलुया, एंड ए ब्रांच शैल ग्रो आउट ऑफ हिज रूट्स। मैं एक वचन देना चाहता हूँ और आपको यशाया की पुस्तक में से पढ़िए 53rd चैप्टर, आइजाया चैप्टर नंबर 53 पहले वचन से। हु हैथ बिलीव्ड अ रिपोर्ट एंड टू whom इज़ द आर्म ऑफ द लॉर्ड रिवील्ड। दूसरा वचन पढ़ें। फॉर ही शैल ग्रो अप बिफोर हिम एज अ टेंडर प्लांट एंड एज अ रूट आउट ऑफ अ ड्राई ग्राउंड। ही हैथ नो फॉर्म नोर कॉमलीनेस एंड व्हेन वी शैल सी हिम देयर वाज नो ब्यूटी दैट वी शुड डिज़ायर हिम। यीशु मसीह यशाया 11 की 1 को पूरा कर रहा है यशाया 53 की 3 में। और he shall grow before him as a tender plant and as a root out of the dry ground। सूखी भूमि है, मरुभूमि है, जीवन समाप्त है इस्राएल का। इस्राएल में से आत्मिक जीवन समाप्त हो चुका है।
एक सूखा हुआ वृक्ष है, मरुभूमि में लगा हुआ है, जीवन का कोई स्रोत नहीं, पानी का कोई झरना नहीं है। परमेश्वर कहता है एक टेंडर प्लांट की तरह, एक छोटे से पौधे की तरह वो निकल रहा है आउट ऑफ ए ड्राई ग्राउंड। हालेलुया। इफ यू रिमेंबर, in the morning I was talking about Jeconiah. Jeconiah, he was a good king at one point of time. अगर आप पढ़ेंगे सेकंड किंग्स, दूसरा राजा 25th चैप्टर 27 and 28 वर्स पढ़ेंगे, there was a time when Jeconiah was walking with the Lord and God blessed him and God prospered him. लेकिन जकोनिया भ्रष्ट हो गया, जकोनिया ने यहोवा का परित्याग किया, जकोनिया ने यहोवा की व्यवस्था को अपने चित्त से निकाल दिया, वो उसके मार्गों में नहीं चला, उसकी विधियों और उसके हुक्मों के अनुसार उसने अपने घराने का जीवन नहीं बनाया और बनी इस्राएल को प्रेरणा नहीं दी, तो यहोवा ने उसको परित्याग कर दिया। आपको मालूम यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? पढ़िए, मैंने सुबह भी आपको वो वचन दिया शायद, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 3। ये बातें बहुत डीप हैं जो यीशु मसीह की वंशावली में जाके प्रकट होती हैं, जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बताया था कि उसके पहला क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 3 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी वंशावली मिलेगी आपको। उसके 7 बेटे हैं, 7 सन्स, 7 बेटे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा इसका सिंहासन खाली हो जाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक में से एक वचन पढ़िए, ये आप खुद पढ़िएगा, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 3 में पूरा चैप्टर पढ़िए, उसकी वंशावली देखिए। यिर्मयाह की पुस्तक में से जल्दी से एक वचन पढ़ें, क्योंकि मैंने आपको बहुत स्क्रिप्चर देने हैं। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 22, Jeremiah chapter number 22 and I will read verse number 24. देखिए प्रभु क्या कहता है। As I live, saith the Lord, though Coniah the son of Jehoiakim, king of Judah, were the signet upon my right hand, yet would I pluck thee thence. आपको मालूम प्रभु ने क्या किया? इसका नाम है जकोनिया, जकोनिया। प्रभु ने इसको क्या बना दिया? यिर्मयाह 22 के 24 में, एज आई लिव सेथ द लॉर्ड, दो कोनाया, इसके नाम के आगे से यहोवा ने अपना नाम निकाल लिया। याह कोनाया इसका नाम था, याह, यहोवा ने अपना नाम हटा दिया इसके नाम से। यहोवा ने कहा मैं तुझे अपना नाम नहीं दूंगा, तेरे ख़ानदान को अपना नाम नहीं दूंगा। देखिए कितनी ड्रेडफुल अवस्था है ये, जब परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन से दूर कर लेता है। आप तो क्या दूर जाओगे, परमेश्वर स्वयं अपने आप को अपने आप से दूर कर लेता है। देख रहे हैं आप कितनी ड्रेडफुल बात है। एज आई लिव, शपथ खा के यहोवा कह रहा है। एंड ही कॉल्स हिम कोनाया, ही रिमूव्ड याह, हिज नेम वाज याह कोनाया, एंड गॉड सेड यू वर अ सिग्नेट अपॉन माई राइट हैंड। यह कोनाया यहोवा के राइट हैंड में एक अंगूठी की तरह था। और कौन सी अंगूठी था? जिसके द्वारा शाही मोहर लगाई जाती है। यहोवा परमेश्वर ने किंगली फेवर इसके ऊपर किया था, यहोवा परमेश्वर ने इसे चुना था, यहोवा परमेश्वर ने इस पे अनुग्रह किया था, यहोवा परमेश्वर ने इसे रॉयल्टी दी थी। He was a regal person. He was a royal signet in the right hand of the Lord. He executed God's authority. He demonstrated God's power, and God gave him a very privileged and highly exalted position. But this man forgot God when God blessed him. You know, when God prospers you, blesses you with all worldly things, all material things, and God gives you influence with, you know, the elites in the world, and when God, you know, lifts you up and takes you the higher echelons, and God makes you sit with the prince and the kings and the nobles, pride begins to seep inside you and you tend to forget God. जब यहोवा आपको ऊंचा करता है, धन दौलत देता है, यहोवा आपकी इन्फ्लुएंस को,
बढ़ाता है, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, तब आप यहोवा परमेश्वर को त्यागते हो। उसे त्याग देते हो। प्रभु कहता है मैं तुझे निकाल दूंगा, अपने हाथ से निकाल दूंगा, तुझे जो पोजीशन दी थी मैं वो वापस छीन लूंगा। भाई और बहनों, बहुत लोगों के संग ऐसा होता है। परमेश्वर जब उनको पदवी देता है, रुतबा देता है, ऊंचा उठाता है, गॉड एलिवेट्स पीपल, गॉड प्रॉस्पर्स पीपल, गॉड पुट्स देम ऑन अ वेरी हाई पेडिस्टल एंड गॉड गिव्स देम इन्फ्लुएंस with the movers and shakers, they get puffed up, घमंड से भर जाते हैं और भूल जाते हैं कि किसने उन्हें आशीष दी है। बहुत सारे लोगों का ये हाल है। मैंने अपने जीवन में देखा कि बहुत सारे लोग जिन्हें यहोवा ने मेरे द्वारा आशीष दी, उन्होंने घूम के मेरी पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की। तो देखिए प्रभु क्या कहता है, 25 वचन पढ़ें। एंड आई विल गिव दी इनटू द हैंड ऑफ देम दैट सीक दाई लाइफ, एंड इनटू द हैंड ऑफ देम whose face thou fearest, even into the hand of Nebuchadnezzar of Babylon, and into the hand of the Chaldeans। प्रभु कहता है मैं तुझे तेरे दुश्मनों के हाथ में करूँगा, तुझे उनके हाथ में दूंगा जिनसे तू डरता है। नबूकदनेस्सर, कसदियों का राजा। 26 वचन पढ़े। एंड आई विल कास्ट दी आउट एंड दाई मदर दैट बेयर दी इनटू अनदर कंट्री वेयर ई वर नॉट बॉर्न एंड देयर ई शैल डाई। कितनी सीवियर पनिशमेंट है, कितनी खतरनाक जजमेंट है यहोवा की। 28 वचन पढ़े। इज दिस मैन कोनाया ए डिस्पाइज्ड ब्रोकन आइडल। यहोवा इतना क्रोधित है इससे, अपना नाम ले लेता है वापस इससे। इसका नाम था यह कोनाया। प्रभु कहता तू कोनाया है, आई विल नॉट गिव यू माई नेम। जब परमेश्वर आपसे अपना नाम छीनता है ना, आपकी कोई लेगेसी नहीं है दुनिया में, आपकी कोई मेमोरी नहीं रह जाएगी दुनिया में, आपके जीवन का कोई सार नहीं होगा, आपके जीवन की कोई छाप पीछे नहीं छूटेगी अगर आप यहोवा परमेश्वर की विधियों और हुक्मों को त्यागते हो और यहोवा परमेश्वर का परित्याग करते हो। पढ़िए 28 वचन पढ़ लीजिएगा, 28 से 30 तक। कितनी सीवियर पनिशमेंट है। हालेलुया। ये व्यक्ति किसी समय यहोवा के राइट हैंड की अंगूठी था, सिग्नेट रिंग, जिससे यहोवा डिसीजन लेता था। और रॉयल, जिसे डिक्री कहते हैं ना, डिक्री। बहुत सारे लोग ना, उनको मालूम नहीं डिक्री क्या चीज़ होती है। आई डिक्लेयर एंड डिक्री, आई डिक्लेयर एंड डिक्री। यू कैन नॉट मेक डिक्री जस्ट लाइक दैट। एवरी टॉम, डिक एंड हैरी इज ट्राइंग टू मेक अ डिक्री। डिक्री और डेक्लरेशन रॉयल्टी को बिलोंग करते हैं। इनके भाई और बहनों प्रोटोकॉल्स हैं। कुछ लोग तो वर्ड्स को ऐसे यूज़ करते हैं, उनको मालूम भी नहीं है कुछ इसके विषय में, बट दे जस्ट यूज़ द वर्ड्स। तो कोनाया जो है वो यहूदा का आखिरी राजा है। कोनाया, ही इज कोनाया, हिज नेम वाज यह कोनाया। लेकिन इस पे जजमेंट आ गई, परमेश्वर ने अपना नाम तक इससे छीन लिया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपना नाम नहीं दूंगा, और कसदियों के हवाले कर दिया, दूर देश में गुलामी में भिजवा दिया। इसके बेटे हैं भाई और बहनों 7, उनके ख़ानदान है आगे। यहोवा ने सबको गुलामी में भेज दिया। इसके सारे बेटे मारे गए। दे ऑल वर किल्ड इन अ फॉरेन लैंड। और आपको मालूम, ये जो बंदा है ये जोसाया के ख़ानदान का है। किंग जोसाया, हु वॉज अ वेरी वेरी गॉडली किंग, राइचस, गॉडली एंड वर्दी किंग ऑफ इज़राइल। इज़राइल के 3 महान राजों में उसका शुमार है जोसाया का। उसके बीज में से है ये राजा। लेकिन इज़राइल की आशीष को फुल स्टॉप लग गया। इसको राजा ले गया गुलाम बना के। उसने गुलामी में रखा इसे अपने देश में, बाद में छोड़ भी दिया। और उसने राजा एक खुद ठहरा दिया इज़राइल में, यहूदा में। और वो राजा था ज़िदकिया। वो राजा असल में इसके पिता का भाई था, इसका चाचा या ताऊ था, जिसको उसने राजा बनाया। वो राजा नहीं होते हैं,
वो वासल किंग होते हैं, वो केवल उन राजाओं की कठपुतलियाँ होते हैं। वो वासल किंग था जिसे बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बाबुल से चलाया करता था। उस राजा का काम था यहूदियों से टैक्स लेना, कर लेना और इज़राइल की बढ़िया उपज का उत्तम भाग इकट्ठा करके कसदियों को भेजना। तो ज़िदकिय्याह राजा बनता है, उसको राजा बना दिया जाता है और नबूकदनेस्सर पहली बार आके कुछ लोगों को गुलामी में ले जाता है। तो वचन पढ़िएगा ध्यान से, आप वचन पढ़ेंगे फिर समझ आएगी। असल में नबूकदनेस्सर 3 बार आता है इज़राइल को लूटने, तीसरी बार पूरी तरह लूट के ले जाता है। जब वो गुलाम बना के लोगों को ले जाता है, ज़िदकिय्याह को राजा बना जाता है, तो ये ट्रीटी होती है कि सारा टैक्स इकट्ठा करके मुझे भेजा जाएगा बाबुल में और उत्तम उत्तम चीज़ों का भाग राजा को भेजा जाएगा बाबुल में। तो झूठे नबी जो थे इज़राइल में पीछे रह गए, वो झूठे नबी फिर भविष्यवाणी करने लगे, फिर लोगों को आशा का मैसेज, जैसे अभी भी महामारी चल रही है पृथ्वी पे, वो लोग बाज नहीं आते। जब परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पे चल रहा है, वो लोगों को आशा के बड़े बड़े लॉफ्टी मैसेज दे रहे हैं, होप, एनकरेजमेंट, आशा, ये प्रभु वो करने जा रहा है, प्रभु वो ब्लेसिंग। अरे भाई, अपने मुंह से बोलते जा रहे हो आप, आपको यहोवा ने कहाँ कहा कहने के लिए। और वो लोग डरते भी नहीं कि हम अपने ही मन से बोल रहे हैं, हमें यहोवा का कोई अध्यादेश नहीं मिला, यहोवा ने कोई बात हमसे नहीं की। हम जब यहोवा परमेश्वर के क्रोध की तलवार लटक रही है, उस समय नबियों का एक ही काम है कि प्रजा को यहोवा के चरणों में पश्चाताप के साथ लाएं, ताकि लोग रिपेंट करें। ये महीने साल रिपेंटेंस में गुजारें प्रभु के आगे, ना कि यहोवा गाड़ी देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है, वो ये करने जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, ब्रेक थ्रू आ रही। ये सब भैया जुमले हैं जो अमेरिका के पादरियों के आप यूज़ करते हो इंडिया में, और या अफ्रीका के पादरियों के। यहोवा के चरणों में बैठ के कोई कलाम लो तो सही, उससे पूछो मैं क्या बोलूँ। या आपने देखा एक पास्टर को, कैंसर को मैं डांटता हूँ, डायबिटीज़ को मैं डांटता हूँ, न्यूरो प्रॉब्लम को मैं डांटता हूँ, हड्डियों की प्रॉब्लम को मैं डांटता हूँ, किडनियों की प्रॉब्लम को मैं, आप भी खड़े हुए आपने भी वही शुरू कर दिया, मैं डांटता हूँ उसको, मैं फलानी बीमारी को डांटता हूँ, मैं। अरे भाई, प्रभु से तो पूछ लो कुछ, किसी की बस कॉपी मारना है। वो जो जिसको आपने देखा उसने भी किसी की कॉपी मारी है। प्रभु से पूछिए आपको क्या बोलना है, प्रभु से पूछिए कैसे सर्विस को कंडक्ट करना है, क्या संदेश देना है, प्रभु क्या कह रहा है। स्वर्ग के संग अलाइनमेंट में तो आइए, स्वर्ग में आने जाने की व्यवस्था तो कीजिए, ताकि यहीं बैठे आत्मा में स्वर्ग जाके आप सुन सकें प्रभु स्वर्गीय सिंहासन पे क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या मैसेज दे रहा है। स्वर्ग से मैसेज निकल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, वही मैसेज पृथ्वी पे डिक्लेयर किया जाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे हो। आपको मालूम यहूदियों का क्या कॉन्सेप्ट है, हिब्राइक पर्सपेक्टिव क्या है? हिब्राइक पर्सपेक्टिव है कि हेवन जो है वो सुपीरियर किंगडम है, पृथ्वी जो है वो इन्फीरियर किंगडम है। हेवन की सुपीरियर किंगडम रूल करती है इन्फीरियर किंगडम को। पृथ्वी का राज्य स्वर्ग के द्वारा चलाया जाना चाहिए। बाइबल में जो लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। उसका असली मतलब है तौबा करो क्योंकि वो राज निकट आया है जो पृथ्वी पे स्वर्ग के द्वारा चलाया जाएगा। किंगडम फ्रॉम हेवन, किंगडम ऑफ हेवन इज ए किंगडम दैट इज रूल्ड फ्रॉम हेवन। जैसे ज़िदकिय्याह को रूल करता था बाबुल का राजा, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर, राज उसका ही था इज़राइल में। ज़िदकिय्याह को राजा बना के चला गया था वो। और उस समय सच्चा नबी इज़राइल में था यिर्मयाह। यशायाह बहुत बूढ़ा हो गया था और उसे शहीद भी कर दिया था उस समय मनस्से राजा ने। आरे से जो चिरवाया गया वो राजा यशायाह, वो खुदा का नबी यशायाह था। तो यिर्मयाह भविष्यवाणी करके क्या कहता है कि तुम अधीन हो जाओ नबूकदनेस्सर के, उसके अधीन रहो, उसके खिलाफ बगावत मत करो। तो इज़राइल के झूठे नबी उसे झूठा नबी कहते थे, ये झूठा नबी है, ये अन्य जाति के राजों के अधीन होने का हमें हुक्म देता है।
और वो भविष्यवाणी करते थे आशा भरी हुई, पॉजिटिव थिंकिंग और साइकोलॉजी प्रीच करना, पॉजिटिव थिंकिंग प्रीच करना, एंड जो लूसीफेरियन टीचिंग है वो प्रीच करना, ये दे रहे थे मैसेज। वो मेटाफिजिकल साइंस प्रीच करना, सेकुलर दुनिया के लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को प्रीच करना, संसार की दुनिया में जो सिद्धांत सिखाए जाते हैं लीडरशिप में और कई रैलम में, उनको बाइबल के अंदर ला के प्रचार करते हैं लोग। क्योंकि यहोवा उनसे बोलता नहीं है कुछ। भाइयों और बहनों, यहोवा की ओर से सन्नाटा बहुत खतरनाक होता है। यिर्मयाह कहता था उसके अधीन करो अपने आप को। झूठे नबी कहते थे नहीं, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा, यहोवा लड़ेगा, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा जंग लड़ेगा। 3 बार नबूकदनेस्सर आया, क्योंकि ज़िदकिय्याह झूठे नबियों की बातें सुनता था और नबूकदनेस्सर को टैक्स देना बंद कर देता था। नबूकदनेस्सर आता था, सब कुछ लूट के ले जाता था। तीसरी बार जब आया, हैकल को पूरी तरह लूट के ले गया। झूठे नबी ऐलान कर रहे थे यहोवा तो हमारे बीच में है, वो इस हैकल के अंदर है, वो करूबों पे विराजमान है, वो हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन यहोवा लड़ा नहीं, वो हैकल को लूट के ले गए। यहूदी जानते थे, यहूदी लोग की प्रॉब्लम क्या थी? जीवन में पाप था, अधर्म था। यहोवा की वाचा की रोशनी हृदय में नहीं थी, केवल बाहरी धर्म था उनके पास, यहूदी धर्म। वो यहूदी धर्म की बिना पे ये सोचते थे प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु उनका त्याग कर गया था। नबूकदनेस्सर आया, हैकल को बुलडोज कर दिया उसने, पूरी तरह से नाश कर दिया, सब कुछ लूट के ले गया। झूठे नबियों की नबूवतें झूठी ठहरी, केवल यिर्मयाह की नबूवत सच्ची ठहरी। एक सच्चे यहोवा के नबी की नबूवत सच्ची ठहरती है। हालेलुया। और ज़िदकिय्याह भी चला गया, इज़राइल का राज्य ख़त्म हो गया। लेकिन प्रभु की भविष्यवाणी का क्या भाई? मैंने आपको बताया प्रभु ने तो भविष्यवाणी की थी सैमुएल की पुस्तक में कि तेरे सिंहासन पे हमेशा कोई ना कोई बैठेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि तेरे सिंहासन पे कोई ना बैठे। तो यशाया बता रहा है कि सब कुछ क्या हो गया, ट्री काट दिया गया, उसकी केवल स्टंप बाकी रह गई, तना रह गया थोड़ा सा नीचे, जड़ें अंदर हैं, वो ट्री ख़त्म हो गया जिसे खुद यहोवा ने लगाया था। लेकिन यहोवा ने भविष्यवाणी की, कहा कि एक टेंडर प्लांट निकल आया सूखी ज़मीन से। हालेलुया। सूखी ज़मीन से एक टेंडर प्लांट यहोवा परमेश्वर ने निकाल दिया। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु के काम कितने अद्भुत हैं। मैं आपको एक रिसोर्स बताता हूँ, पशीटा डे रब खाना 5th एक बुक है जूइश लोगों की, जिसके फ्रेगमेंट कुमरान केव से मिले हैं, डेड सी स्क्रोल्स में से। उसमें अगर आप एक सेक्शन पढ़ेंगे सेनहीड्रन 37b 37:8a, उसके अंदर ये पूरी स्टोरी बताई गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सुनिएगा आप एक वचन। हालेलुया। मैं एक वचन देता हूँ आपको। सुनिए, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था, मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ। पहला क्रॉनिकल्स उसका 17 अध्याय, पहला इतिहास का 17 अध्याय और उसके 11 वचन से पढ़ता हूँ। एंड इट शैल कम टू पास व्हेन दाई डेज बी एक्सपायर्ड दैट दाउ मस्ट गो टू बी विद दाई फादर, आई विल रेज अप दाई सीड आफ्टर दी विच शैल बी ऑफ दाई सन्स एंड आई विल एस्टैब्लिश हिज किंगडम। दाऊद जब जगत को छोड़ के जाने वाला है, इस संसार को छोड़ के जाने वाला है, तब यहोवा परमेश्वर उससे बातें करता है और क्या कहता है कि मैं तेरे बीज को एस्टैब्लिश करूँगा। ही शैल बिल्ड मी अ हाउस एंड आई विल एस्टैब्लिश हिज थ्रोन फॉर एवर। मैं उसके सिंहासन को हमेशा के लिए कायम करूँगा। दूसरा सैमुएल 7 अध्याय 12 से 17 वचन प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। दूसरा सैमुएल 7 अध्याय 12 से 17 वचन।
और प्रभु क्या कहता है, वो मेरे लिए घर बनाएगा। आई विल बी हिज फादर, मैं उसका पिता ठहरूंगा, एंड ही शैल बी माई सन। आई विल नॉट टेक माई मर्सी अवे फ्रॉम हिम, मैं अपनी करुणा उससे हटाऊंगा नहीं, एज आई टुक इट फ्रॉम हिम दैट वॉज बिफोर दी। जैसे मैंने शाऊल से अपना अनुग्रह हटा लिया वैसे उससे नहीं हटाऊंगा। प्रभु क्या कहता है, बट आई विल सेटल हिम इन माइन हाउस and in my kingdom forever, and his throne will be established forever. According to all these words and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. नथान नबी प्रोफेसी करता है और दूसरा सैमुअल 7 अध्याय के अगर आप 12 से 17 वचन पढ़ेंगे, दूसरा सैमुअल 7 अध्याय 12 वचन से 17 वचन तक, तो प्रभु कहता है कि मैं उसको रॉड ऑफ मैन से, मनुष्यों के डंडे से सीधा करूंगा अगर वो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, और इंसानों के कोड़ों से उसे सजा दूंगा। मैं उसका बाप ठहरूंगा और वो मेरा बेटा ठहरेगा। प्रभु इज़राइल के संग ये वाचा बांधता है और प्रभु कहता है कि हिज थ्रोन, 14 वचन में लिखा है, हिज थ्रोन शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर एवर, उसका सिंहासन हमेशा के लिए मैं कायम करूंगा। ये वादा था। तो अब प्रभु ने यकोनिया को त्याग दिया है, राज्य ख़त्म हो गया, इज़राइल गुलामी में चला गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो परमेश्वर की तो प्रतिज्ञा थी कि 2 जगह प्रतिज्ञा की यहोवा ने, पहला इतिहास 17 की 11 से 15 में, दूसरा सैमुअल 7 की 12 से 17 में परमेश्वर ने वादा किया। लेकिन कोनिया जो था, कोनाया, जिसका नाम याह कोनाया था, उससे यहोवा ने अपना नाम भी छीन लिया और यहोवा ने उसे श्राप दे दिया कि तेरे ख़ानदान में से कभी कोई सिंहासन पे नहीं बैठेगा। मैंने तुझे अंगूठी बनाया था, अपने राइट हैंड की रिंग बनाया था, रॉयल डायाडेम, और मैंने सिग्नेट रिंग बनाया था तुझे, लेकिन मैं तेरा त्याग करता हूँ। यहोवा ने उसे त्याग दिया। अब देखिए कैसे यहोवा परमेश्वर का रूह अद्भुत रीति से काम करता है। अब मैं आपको 1-2 वचन देना चाहता हूँ। पढ़िए आप हज्जई नबी की पुस्तक, हज्जई नबी की पुस्तक। अगर आप मलाकी से पीछे की ओर जाएंगे तो इजी मिल जाएगी हज्जई नबी की पुस्तक। हज्जई नबी की पुस्तक और जोना, माइका, नेहम, हबक्कुक, ज़करयाह, ज़पन्याह के बाद आपको हज्जई मिलेगा। प्रॉफिट हैगाई, इन इंग्लिश वी कॉल प्रॉफिट हैगाई। प्रॉफिट हैगाई चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 23। लुक हाउ गॉड वर्क्स। परमेश्वर ने सजा दी, उसके ख़ानदान को मिटाया, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला जो दाऊद के साथ की है। दाऊद एक ऐसा अद्भुत खुदा का खादिम है जिसके साथ परमेश्वर ने इररिवोकेबल कवनेंट बांधा है, ऐसी वाचा बांधी जो कभी टूटेगी नहीं। हालेलुया। देखिए अब इधर क्या है, हज्जई 2:23 में, इन दैट डे सेथ द लॉर्ड ऑफ होस्ट, आई विल टेक दी ओ जरूबाबेल माई सर्वेंट सन ऑफ शेयल्थियल, सेथ द लॉर्ड, आई विल मेक दी अ सिग्नेट फॉर आई हैव चोजन दी, सेथ द लॉर्ड ऑफ होस्ट। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? अब एक बंदा है जिसका नाम है जरूबाबेल। ये गवर्नर था पर्शिया में, हाई प्रोफाइल बंदा था, यहोवा का दास था। ये इजरायलियों को वापस लेकर आया है। जरूबाबेल लाता है, नेहेमाया लाता है और एजरा लाता है। ये 3 की बंदे हैं जो टेम्पल को फिर से बनाते हैं। यहोवा जरूबाबेल के विषय में क्या कहता है? शेयल्तियल का बेटा है। प्रभु कहता है मैं तुझे वही अंगूठी बनाऊंगा जो अंगूठी किसी समय याह कोनाया था। प्रभु कहता है मैं तुझे वही अंगूठी बनाऊंगा। आपको मालूम ये कौन है बंदा जरूबाबेल? जो जकोनाया के बेटे हैं 7, उनमें से एक उसका बेटा पेदाया, ये पेदाया का बेटा है, ये जकोनाया का पोता है। परमेश्वर सजा देता है क्रोध में, परमेश्वर दयालु भी है। अपने क्रोध में परमेश्वर अपनी करुणा को स्मरण रखता है। परमेश्वर का क्रोध, हमारा क्रोध होता है, हमारे आवर एंगर इज एंगर, बट गॉड्स एंगर इज नॉट पेट्यूलेंट एंगर। गॉड्स एंगर इज राइचस एंगर, गॉड्स एंगर इज होली एंगर, गॉड्स एंगर इज एंगर दैट इज
that stems from justice. और अपने एंगर में, अपने क्रोध में यहोवा कभी अपनी करुणा को नहीं भूलता है। मनुष्य जब गुस्सा करता है उसके अंदर कोई करुणा नहीं होती, लेकिन हमारा पिता ऐसा नहीं है। कोनाया को उसने त्याग दिया है, वो यह कोनाया था, अपना नाम छीन लिया, और यह कोनाया यहोवा की सिग्नेट रिंग था, उसके पोते को वापस कर दी सिग्नेट रिंग यहोवा ने। ये उसका पोता है जरूब्बाबिल। हालेलुया। सिग्नेट रिंग यहोवा परमेश्वर ने वापस दे दी। पढ़ लीजिएगा एस्थर की पुस्तक 2 अध्याय का 6 वचन जल्दी से। एस्थर की किताब निकालिए, एस्थर की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, सुन ले ध्यान से। Who had been carried away from Jerusalem with the captivity, जो बंधुआई में चले गए थे, कहाँ से? यरूशलेम से। Which had been carried away with Jeconiah, Jeconiah, king of Judah, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away. हालेलुया। पढ़ लीजिए आप पूरा, ये कौन लोग हैं, पूरा ये पढ़िए। जो गुलामी के अंदर चले गए थे लोग, यहाँ पे पूरी उनकी डिटेल आपको मिलेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, जो मनुष्यों की समझ से परे की बातें। अभी तक मैं आपको वहाँ पे नहीं ला पाया, जीनियोलॉजी पे। ये सारी चीज़ जो मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, इतना पूरा अध्ययन हम कर रहे हैं, इसका मकसद है यीशु मसीह की जीनियोलॉजी, यीशु मसीह की वंशावली में जाना। हालेलुया। कल सुबह किसी जगह मुझे प्रेयर मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर कोई मार्ग खोले। मेरे पास कोई साधन नहीं है जाने के लिए, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। एक मसीह भाई है बहुत अच्छा, उसकी मदर की मेमोरियल सर्विस है, और कल वहीं से एक मीटिंग लाइव करेंगे हम। तो दिन में मैं नहीं करूँगा कोई सर्विस, उसी मीटिंग को हम लाइव करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं आपको वचन देना चाहता हूँ, जल्दी से पढ़िए ये सब स्क्रिप्चर, प्लीज़ नोट करते जाइए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय निकालिए, यिर्मयाह 33 और उसका 15 वचन से सुनिए ध्यान से। भविष्यवाणी है यिर्मयाह की। इन दोज डेज एंड एट दैट टाइम विल आई कॉज ब्रांच ऑफ राइचियसनेस टू ग्रो अप unto David and he shall execute judgment and righteousness in the land। मैं आपको इस पे मैसेज दूंगा ब्रांच के ऊपर, अभी नहीं, कुछ दिन रुक के। ये ब्रांच कौन है? ब्रांच ऑफ राइचियसनेस। ये ब्रांच ऑफ राइचियसनेस है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये उस ट्री में से निकल रही है जिसके विषय में यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है 11 अध्याय के अंदर। जस्सी के ठूंठ में से एक शाख निकलेगी, सूखे हुए कटे हुए दरख्त में से निकलेगी ये ब्रांच ऑफ राइचियसनेस। और पूरे न्यू टेस्टामेंट में इस ब्रांच की शिक्षा है। ये जो ब्रांच है, मैं फिर इसके ऊपर अध्ययन करूंगा, ये 2 घंटे की अलग शिक्षा है। टू ग्रो अप unto David and he shall execute judgment and righteousness in the land. In those days shall Judah be saved and Jerusalem shall dwell safely, and this is the name wherewith she shall be called, the Lord our righteousness। यहोवा परमेश्वर हमारी धार्मिकता। For thus saith the Lord, David shall never want a man to sit upon the throne of the house of David। दाऊद के लिए कमी नहीं होगी कि उसकी सिंहासन में कोई बंदा ना बैठा हो। फिर वादा कर रहा प्रभु, सजा आ गई है, गुलामी में चले गए लोग, जाह कोनिया से नाम छीन लिया यहोवा ने, वो कोनिया रह गया है, वो मुकुट चला गया। अगर नबी की पुस्तक पढ़ेंगे तो नबी कहता है इज़राइल से मुकुट चला गया। इज़राइल का मुकुट, इज़राइल का क्राउन है यहोवा, उसने अपना नाम छीन लिया है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि दाऊद के संग ऐसी वाचा है प्रभु की, दाऊद के संग ऐसा करार है। डेविड शैल नेवर वांट अ मैन टू सिट अपॉन द थ्रोन ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, नीदर शैल द प्रीस्ट द लीवाइट्स वांट अ मैन बिफोर मी टू ऑफर बर्nt offering and kindle meat offering and to do sacrifice continually। God will somehow supernaturally,
हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर कोई काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इस ब्रांच के ऊपर हम फिर बातचीत करेंगे। मैं अभी आपको वचन देना चाहता हूँ, जल्दी से मेरे साथ निकालिए। हालेलुया। आप जल्दी से आइएगा। मैं जीनियोलॉजी की ओर आपको लेके चलता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 12 वचन। मैथ्यूस 1:12, मत्ती 1 का 12। सब लिखते जाइए प्लीज़ बीच में। मत्ती 1 का 12 में सुने अब। एंड आफ्टर दे वर ब्रॉट टू बेबीलोन, जकोनियास बिगेट सलाथियल, एंड सलाथियल बिगेट जोराबाबेल। सलातियल का दूसरा नाम पेदाया भी है। पढ़े यहां पे क्या लिखा 12 वचन में। एंड आफ्टर दे वर ब्रॉट टू बेबीलोन, बाबुल की गुलामी में चला गया कौन? जकोनिया। यहोवा ने इसे त्याग दिया है। बिगैट सलातियल, सलातियल का नाम पेदाया भी है। एंड सलातियल बिगैट जरूबाबेल, कौन पैदा हुआ उसके? जरूबाबेल पैदा हुआ। एंड जरूबाबेल बिगैट इहुड। ये यीशु मसीह की वंशावली है जकोनिया से। जाह कोनाया, जिसे कोनाया कर दिया, उससे वंशावली चल रही है जीसस की है, जिसके ऊपर, इस बंदे के ऊपर श्राप है यहोवा का। ये कोनाया बन गया 12 वर्ष के अंदर जो बंदा है, इससे मुकुट छीन लिया गया, इससे यहोवा ने अपना नाम छीन लिया। ये श्राप के नीचे इसका घराना, ये सब के सब मारे जाएंगे। यहोवा ने कहा इसके बेटों में से कोई भी सिंहासन पे नहीं बैठेगा, ये गुलामी में चले गए हैं। इसी के ख़ानदान में से अब क्या हो रहा है? इसी बंदे के, इसी की लाइन में से कौन आ रहा है? पढ़िए 16 वचन। एंड जेकब बिगैट जोसेफ द हस्बैंड ऑफ मैरी, यूसुफ इसी के ख़ानदान में से पैदा हो रहा है। इसका ख़ानदान, कोनाया की फैमिली केम अंडर द कर्स, लेकिन यहोवा ने कर्स को रिवर्स किया जरूबाबेल के द्वारा। वो जो सिग्नेट रिंग थी, जो ऑथोराइजेशन की, अथॉरिटी की, पावर की सिग्नेट रिंग या कोनाया को दी थी, वो उसके पोते को मिल गई जरूबाबेल को। मैंने आपको वचन पढ़ के दिखाया जरूबाबेल के विषय में प्रभु क्या कहता है। जरूबाबेल एक ऐसा खुदा का बंदा है जो यहोवा को बहुत प्यार करता है। ये या कोनाया का पोता है, या कोनाया के ख़ानदान के ऊपर श्राप है, उसके बेटों में से कोई सिंहासन पे नहीं बैठेगा। लेकिन उसके यहोवा की प्रतिज्ञा कैसे काम करती है? दाऊद के संग जो वाचा बांधी है, दाऊद के संग जो उसने करार किया है, वो इटर्नल है। उसने अपनी नाम की, अपनी ज़ात की शपथ खा के, सौगंध खा के वादा किया है कि तेरे लिए सिंहासन पे कोई ना कोई ज़रूर बैठेगा। तेरी गद्दी, तेरी किंगडम, तेरा थ्रोन इज़ इटर्नल, फॉर आई हैव ब्लेस्ड यू डेविड। हालेलुया। और लेवियों को भी यहोवा ने बरकत दी, और याजकों को भी। लावियों का घराना और शाही किंगली थ्रोन हमेशा हमेशा के लिए एस्टैब्लिश रहेगा। और मैंने आपको बताया जरूबाबेल यहोवा का तालिब है, खोजी है, यहोवा से प्यार करने वाला है। यहोवा के घर के लिए उसे बहुत अगन लगी हुई है, और वो शहर पनाह को बनाने के लिए जाता है। नेहमाया भी उसके संग है, लेकिन नेहमाया जो है वो शहर पनाह बनाता है, लेकिन जरूबाबेल को सबसे इंपॉर्टेंट काम दिया गया है यहोवा परमेश्वर की टेंपल को बनाने का। हालेलुया। देखिए कैसे परमेश्वर कर्ज को रिवर्स भी करता है, कृपा भी करता है, दया भी करता है, सजा भी देता है, डंडा भी लगाएगा। वो कहता है आई विल यूज द रॉड ऑफ मैन एंड आई विल यूज द स्कर्ज ऑफ मैन टू करेक्ट हिम, टू डिसिप्लिन हिम, टू मेक हिम फॉलो माई पाथ। सजा आएगी, दंड मिलेगा। जो जिस पुत्र से वो प्यार करेगा उसको सजा देगा, ताड़ना देगा। अगर यहोवा किसी को सजा देना छोड़ देता है तो ये बहुत खतरनाक बात है। मैंने आपको बताया यहोवा की जजमेंट 3 स्टेजेस में आती है, अगर आपको याद होगा वो वचन। हाउ गॉड जजेस पीपल, देयर आर 3 स्टेजेस। यहोवा की जजमेंट अब्रप्टली नहीं आती, इसलिए मनुष्य जागता नहीं है जल्दी, क्योंकि यहोवा की जजमेंट, यहोवा का क्रोध स्लोली आता है, सजा भी स्लोली धीरे धीरे आती है।
इसलिए बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, वो यहोवा को जानते नहीं हैं, यहोवा का स्वभाव कैसा है, यहोवा की नेचर कैसी है, यहोवा के काम करने के मार्ग कैसे हैं, यहोवा की विधियां कैसी हैं, यहोवा किस तरह से डील करता है, और हमें कैसे यहोवा पिता को जानना ज़रूरी है, उसके किरदार को, उसके एट्रीब्यूट को, उसके चरित्र को कैसे जानना है, कैसे समझना है अति पवित्र परमेश्वर को। बहुत सारे लोग इसलिए धोखा खा जाते हैं। आपको मालूम, यहाँ पे यूसुफ आ रहा है किसके ख़ानदान से? यकोनिया के ख़ानदान से। यकोनिया के ख़ानदान पे श्राप है, लानत है, लेकिन ज़रूब्बाबिल के ऊपर बरकत आती है, उसको फिर रिंग मिलती है वो, क्योंकि वो टेंपल बना रहा है। लेकिन यकोनिया के पाप के बाद यहूदा के घराने से श्राप नहीं जा रहा है, लानत है, इनको सिंहासन नहीं मिला, थ्रोन नहीं मिला दोबारा। अब कौन निकल आया इनमें से? 16 वचन पढ़ें, मत्ती 1:16, एंड जेकब बिगैट जोसेफ। पीछे अगर पढ़ेंगे 15 वचन, इलूड बिगैट इलाजार, इलाजार बिगैट मतटान, मतटान बिगैट जेकब, जेकब बिगैट जोसेफ। अब यूसुफ पैदा हुआ, यूसुफ मरियम का पति था शारीरिक भाव से, मतलब उसके संग उसकी मंगनी हुई और बाद में उसकी शादी हुई। ऑफ होम वॉज बॉर्न जीसस क्राइस्ट। उनके उसमें मरियम से यीशु मसीह पैदा हुआ। तो यूसुफ जो है वो राजा के ख़ानदान से है, दाऊद के ख़ानदान से है, दाऊद के बेटे सुलेमान के ख़ानदान से है। सुलेमान जो राजा है, वचन को ध्यान से सीखें, सुलेमान भी यहोवा की पहली चॉइस नहीं था। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की परफेक्ट विल और परमेश्वर की परमिसिव विल, इसका भेद समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है और परमेश्वर जो आपको करने की इजाज़त दे देता है, उन दोनों में बड़ा भेद है। परमेश्वर की चॉइस था दाऊद का, दाऊद की लीगल पत्नी से, जो पहली पत्नी थी लीगल, उसकी कोख खोलने वाला पहलौठा, वो दाऊद के सिंहासन का वारिस था। जो दाऊद की पहली पत्नी का पहला बेटा जिसने उसकी कोख खोली, वो राजा दाऊद के सिंहासन का वारिस था, और उसका नाम था अबशलोम। उसको सिंहासन पे बैठना चाहिए था। लेकिन दाऊद के पाप के बाद जो बैतशेबा से किया उसने, उसके बाद दाऊद के अंदर कुछ चीज़ ऐसी टूट गई। आपको मालूम, जब भी आप पाप करते हो, जनाकारी करते हो, हरामकारी करते हो, आपके अंदर से कुछ ना कुछ टूटता है। ऐसा कुछ ऐसा भी टूट जाता है जो दोबारा बन नहीं पाता। दाऊद के उस पाप के कारण दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू किया राजा दाऊद के घराने में। राजा दाऊद की एक दूसरी पत्नी के बेटे ने, अबशलोम, जो राजा दाऊद की पटरानी थी, उसका बेटा अबशलोम था। तो राजा दाऊद की प्रथम जो पत्नी थी, जिसमें से अबशलोम निकला, जो दाऊद के सिंहासन का हकदार था, राइटफुल हकदार था, उसकी बहन, उसके संग राजा दाऊद की दूसरी पत्नी के बेटे ने जबर जनाह किया, उसकी असमत को लूटा, उसको रेप किया। और वो बहन बहुत खूबसूरत थी, अबशलोम बहुत सुंदर था, उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे और बहुत लंबा चौड़ा खूबसूरत जवान था। वो इज़राइल का राजा होने के लायक था हर रीति से। वो उसकी बहुत सुंदर बहन थी जिसको उसके ही भाई ने पलूट कर दिया, उसको रेप किया। वो अपने बालों में राख डाल के अपने भाई के घर में आ गई और सचमुच बहुत रोई होगी। अबशलोम भी बहुत रोया होगा। लेकिन अबशलोम ने ये चाहा कि उसका बाप जो राजा है वो न्याय करेगा, पर राजा दाऊद ने कोई न्याय नहीं किया। जब उसने देखा कि राजा दाऊद ने कोई न्याय नहीं किया और उसकी बहन की पीड़ा उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, तो उसने प्लॉट करके उसको मार डाला, जिसने उसकी बहन के संग रेप किया था। फिर देखिए, राजा दाऊद के घर में, घराने में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू किया। अबशलोम ने बलवा कर दिया। और आपको मालूम, अहीतोफेल नाम का एक व्यक्ति था, AHITOPHEL, अहीतोफेल। मैं फिर आपको रेफरेंस दे दूंगा या आप ढूंढ सकते हैं। अहीतोफेल नाम का व्यक्ति राजा दाऊद का वाइज मैन था। अफ्रीका के जो पादरी लोग हैं ना, इनके अंदर बड़ा ट्रेडिशन है वाइज मैन का। पादरियों के संग वाइज मैन चलते हैं, प्रॉफिट चलता है, वाइज मैन चलते हैं। तो राजा दाऊद के काउंसलर थे ये अहीतोफेल। हित्ती था ये,
बहुत बुद्धि से परिपूर्ण था, प्रोसेलाइट था, हित्तियों में से यहोवा की शरण में आया था। ये राजा दाऊद का काउंसलर था। तो राजा दाऊद ने जब उरिया हित्ती, पढ़ते ना वचन में आप, उरिया एक फौजी था, यूराया उसकी पत्नी का नाम था बैतशिबा। उसके संग राजा दाऊद ने जबर जनाह किया। जबर तो नहीं किया, शी केम एंड किंग डेविड हैड सेक्सुअल इमोरालिटी, और आप सब स्टोरी जानते हो। उसी के पति को राजा दाऊद ने मरवा दिया, उरिया हित्ती को। उसी उरिया हित्ती का बाप था अहीतोफेल, जो राजा दाऊद का काउंसलर था, चीफ काउंसलर था। उसके दिल को बहुत ठेस लगी, उसने राजा दाऊद से बदला लेने की ठानी। पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त वाक़या है। उसने राजा दाऊद के बेटे अबशलोम को भड़काया जब उसकी बहन के संग रेप हुआ, और अबशलोम ने राजा दाऊद के खिलाफ बलवा किया, और राजा दाऊद की जो रखेलें थी उनके संग ओपनली सेक्सुअल इमोरालिटी की। वो डिक्लेयर करना चाहता था कि राजा मैं हूँ। और राजा दाऊद के जीवन में देखिए एक ऐसा फेज़ आया कि गुफाओं में, जंगलों में छिपता फिर रहा था वो। ये ऐसे पाप हैं सेक्सुअल इमोरालिटी के, जब ये जीवन में किसी के आते हैं तो टनल खुल जाती है, एक सुरंग खुलती है जिसमें से बदरूएं आके पूरी फैमिली को नेस्ता नबूद कर देती हैं, उजाड़ देती हैं बदरूएं आके। तो राजा दाऊद के सिंहासन का सही वारिस पहुंच नहीं पाया, और कौन वारिस बन गया? सुलेमान वारिस बन गया। और आप सुलेमान की स्टोरी आपने पढ़ी है ना। मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा देना चाहता हूँ। पहला राजा 11 अध्याय, जल्दी से निकालें। पहला राजा उसका 11 अध्याय, जल्दी से निकालिए। पहला राजा 11 अध्याय। कई बार परमेश्वर चाहता नहीं आप वो काम करें, लेकिन आप परमेश्वर को बग करते दुआ कर करके, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। जैसे एक बच्चा, जिद्दी बच्चा या जिद्दी बच्ची अपने माँ बाप से कुछ चाहती है या चाहता है, तो उसके नतीजे खुद भुगतने पड़ते हैं। अब देखिए, ये राजा भी लोगों ने मांगा। लोग कहते थे हमें सेकुलर किंगडम बनाओ, प्रभु तो खुद राजा बनना चाहता था। इज़राइल का पहला राजा शाऊल नहीं था, इज़राइल का पहला राजा यहोवा है। यहोवा मेरे जीवन पे, आपके जीवन पे राज करना चाहता है। हमारा राजा यहोवा है, हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? 11 वचन, पहला राजा 11 अध्याय। बट किंग सोलोमन लव्ड मैनी स्ट्रेंज वुमेन। उसने ऐसी औरतों से प्रीत लगाई जो शैतान की बेटियां थी। मैं सीधे शब्दों में बोलूँगा, अन्य जाति के देवी देवताओं की पूजा और उपासना करने वाली थी। कुछ तो ऐसी औरतों से इसने शादी की जो दूसरे देश के राजाओं की बेटियां थीं, ताकि उन देशों के संग राजा सुलेमान की संधि हो जाए और राजा सुलेमान के राज्य का विस्तार हो। और ये जो देश थे, जो औरतें थीं, ये तरह तरह के देवियों की, देवताओं की पूजा करती थीं। इनके देश की संस्कृति बहुत अजीब थी। हर तरह की सेक्सुअल इमोरालिटी, गंदी शारीरिक काम वासना, गंदे घिनौने काम, गंदे बलिदान चढ़ाने, लहू पीना और बच्चों की कुर्बानियाँ देना, अबॉर्शन करना, ऐसे गंदे गंदे काम इन लोगों के बीच में किए जाते थे। जादूगरी, टूना और आकाश की शक्तियों की पूजा, ये सारे काम किए जाते थे। राजा दाऊद उन औरतों के संग शादी करता था। लिखा है डॉटर ऑफ फेरो, फिराउन की बेटी के संग, विमेन ऑफ, किन किन के संग शादी कर ली? मोआबाइट, एमोनाइट, ईडोमाइट, जायोनाइट, हाइटाइट। पढ़िए, ये सारा वचन पढ़ लीजिए। औरतों के संग शादी की। फिर वो क्या करने लगा? प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा था इनके संग ये काम मत करना। ऑफ द नेशंस, दूसरा वचन, उन राज्यों के विषय में जिसमें प्रभु ने कहा था कि तुम इनके पीछे मत जाना और इनके संग अपनी बेटे बेटियां मत ब्याहना। ये तुम्हारा दिल तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से दूर करके झूठे देवी देवताओं की ओर कर देंगे। तो क्या लिखा? सोलोमन क्लेव अनटू दीज इन लव। सुलेमान पहले यहोवा से प्यार करता था, अब सुलेमान इन औरतों से, जिनका, जो शैतानी औरतें थी, जादूगरी, जादू टूना करने वाली, मूर्तियों की पूजा करने वाली, मारदूक की, किमोश की और मारदूक की, किमोश की, बालीम की, अश्तोरेत की, ग्रोब की पूजा करने वाली ये देवी, दगोन की पूजा करने वाली देवी
देवी देवताओं की और मिस्र के घिनौने देवी देवताओं की पूजा करने वाली औरतें हैं जिनसे राजा दाऊद ने प्रीति लगाई। 700 पत्नियां हैं और 300 कनक्यूबाइन है, 1000 औरतें हैं। एक के 2-2 बच्चे भी हुए तो 2000 तो बच्चे हैं, 1000 औरतें हैं और एक की 2-2 नौकरानियाँ हुई तो 5-7 हज़ार तो उसकी ये औरतें ही हैं भैया। और देखें आगे, फॉर इट केम टू पास व्हेन सोलोमन वाज ओल्ड दैट हिज वाइव्स टर्न्ड अवे हिज हार्ट आफ्टर अदर गॉड्स। राजा दाऊद का दिल दूसरे देवी देवताओं की ओर लग गया। एंड हिज हार्ट वॉज नॉट परफेक्ट विद द लॉर्ड हिज गॉड एज वॉज द हार्ट ऑफ हिज फादर डेविड। For Solomon went after Ashtaroth. Ashtaroth के पीछे गया, goddess of Zidonian, and after Milcom, the abomination of the Ammonite. Solomon did evil in the sight of the Lord and went not fully after the Lord as did his father David. Then did Solomon build high places for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon. Likewise did he all his strange wives, which burnt incense and sacrifices unto their God. And the Lord was angry with Solomon, because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had appeared unto him twice. 2 बार यहोवा ने जिस बंदे को दर्शन दिया वो किनकी पूजा कर रहा है? अश्तोरेथ की पूजा कर रहा है, किमोश की पूजा कर रहा है, मिल्काम की पूजा कर रहा है, बालीम की पूजा कर रहा है, दगोन की पूजा कर रहा है, मूर्तियों के आगे माथा टेक रहा है, उनके आगे धूप जला रहा है, उनके आगे कुर्बानियाँ चढ़ा रहा है, कुर्बानियों की वो गंदी कुर्बानियाँ खा रहा है, गंदा ब्लड पी रहा है, हर तरह के गंदे घिनौने काम कर रहा है, जिसे 2 बार यहोवा ने दर्शन दिया था। 2 बार। इसके पापों ने इज़राइल का बेड़ा गर्क कर दिया सुलेमान के। वचन बहुत सी और बातें हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, फिर किसी सेशन में बताऊंगा। और राज्य फट गया। प्रभु इससे कहता है कि मैंने तुझे त्याग दिया है, पर तेरे बाप दाऊद के करके मैं तेरे राज्यकाल में सजा नहीं लाऊंगा। जब तुम मर जाएगा तेरा राज्य फट जाएगा। दाऊद के पापों की सजा पूरा इस्राएल भोगता रहा, आज तक भी भोग रहा है। 1948 14 मई को ये लोग वापस लौटे हैं, इस श्राप से आज़ाद हुए हैं सुलेमान के, जो सुलेमान ने ये पाप किए। तो आप सोचते हो कि इट इज़ ईजी टू जस्ट फूल अराउंड विद गॉड? यू थिंक इट इज़ ईजी नाउ that you can go about whoring with all those false demon gods, and you can just going after your fleshly desires and go doing anything and God will bless you? ये सोचते हो आप? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत बड़े अंधेरे में बैठे हो। आप जानते नहीं हो यहोवा को। ये जो राजा है सुलेमान, और इसी की लाइन में आ रहा है आगे कोनिया, इसके खानदान में जह कोनिया जिसका नाम था, उससे यहोवा ने अपना नाम भी छीन लिया। वो इसका आखिरी वंशज है, इस राजा सुलेमान का आखिरी वारिस है। इसी की लाइन में से जीसस क्राइस्ट आ रहा है। यूसुफ इसी की लाइन में से है। लेकिन यूसुफ और मरियम, जब यीशु मसीह मरियम की कोख में है तो यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लेके कहाँ जा रहा है? क्योंकि अगस्तस कैसर की आज्ञा निकली है। वो बैतलहम को जाएगा और अपना नाम रजिस्टर करवाएगा। अपनी पत्नी को जब लेकर जा रहा है तो वचन में लिखा है वहाँ पे उन्हें कोई जगह नहीं मिली। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जोसेफ बहुत गरीब है। राजा दाऊद के खानदान में होके गरीब है, गधी के बच्चे पे अपनी बीवी को लेके जा रहा है और उसको कोई जगह नहीं मिल रही। तो लिखा है कहाँ पे? जहाँ पे मेमने, भेड़ें मेमनों को जन्म देती थी, उस जगह पहुँच गया। वो एक टावर है पूरा, उसकी पुरानी हिस्ट्री है, रेचल की कहानी के संग जुड़ी हुई जगह है वो बैतलहम की। राहेल जो हमारी माता थी उसकी लाइफ से जुड़ी जगह है। वो एक बुर्ज है, टावर था वहाँ पे, जहाँ पे ये जगह स्टॉल बना हुआ है, जहाँ पे हामिला भेड़ों को रखा जाता है। और जो गडरिये बाहर देखभाल कर रहे हैं, ये गडरिये जो हैं ये लेवियों के घराने के गडरिये हैं, जिनका काम होता है मेमनों को ढूंढना। जब भेड़ें गर्भवती हों तो मेमनों को ढूंढना, जो कामिल मेमने हों, जिनको फसा के दिन कुर्बान किया जाए यहोवा के आगे। तो ये ब्रीडिंग करते हैं भेड़ों की,
और भेड़ें जो मेमना देती हैं, उन मेमनों का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं मेमनों को कि कौन सा मेमना कामिल है, किसके नखून सही हैं, स्किन सही है, किसके कोई पैच तो नहीं है। मुंह खोल के देखते हैं अंदर कोई उसके अंदर कमी तो नहीं है मेमने की। जब मेमना पूरा मुकम्मल मिलता है, कामिल मिलता है, तब वो ऊंची जोर से खुशी से चिल्ला के कहते हैं टिलियोसिस, संपूर्ण मेमना मिल गया। टिलियोसिस का मतलब है संपूर्ण हुआ। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्रूस से क्या चिल्ला के कहा? यीशु मसीह ने क्रूस से अपने अंतिम शब्द कहे टिलियोसिस, पूरा हुआ। हालेलुया। संपूर्ण मेमना संपूर्ण रीति से कुर्बान हुआ। उस जगह माता मरियम ने लूका रचित सुसमाचार पढ़िएगा, यीशु मसीह को जन्म दिया। क्योंकि यूसुफ गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि जकोनिया उसका जो वंशज है, उसका जो वंशज सुलेमान है, उन्होंने पाप किए हैं, अधर्म किए हैं, हरामकारियाँ की हैं, लुचपने किए हैं, जादूगरी की हैं, टूने किए हैं, शैतानी देवी देवताओं को माथे टेके हैं, घिनौने काम यहोवा के विरुद्ध में किए हैं, यहोवा को क्रोध दिलाया, यहोवा की आज्ञा विधियों को पाँव के नीचे रोंदा है, यहोवा के वचनों को, यहोवा की वाचा को तोड़ा है और अन्य जातियों जैसे छिनाले के गंदे काम किए हैं। इसलिए यहोवा का कोप बारंबार भड़का है और यहोवा ने सजा दी है और यहोवा ने अपना नाम तक छीन लिया है कि मैं तुम्हें अपना नाम नहीं दूंगा। वो कर्स आया है इसके खानदान पे। यूसुफ को लकड़ी का काम करना पड़ रहा है। एक राजा को मेज बनाते, कुर्सियां बनाते देखा होगा कभी आपने? ये कर्स है सुलेमान की लिनज के ऊपर आया। ये कर्स है कोनिया के खानदान में से आगे चला हुआ। आपको मालूम, जो यीशु मसीह को हैकल में लेके जाते हैं, कोई लैविश कुर्बानी नहीं दे पाया यूसुफ, कबूतरों का जोड़ा चढ़ा पाया है। कबूतरों के जोड़े की कुर्बानी की व्यवस्था यहोवा ने गरीबों के लिए की थी कि जो यहूदी गरीब हों, वो यहोवा को मेमना ना चढ़ा सकते हों, वो यहोवा को कबूतर चढ़ा दें। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस घर में आया है। सुन रहे हो आप भाई और बहनों? जस्सी के टुंड में से जस्सी टुंड बन गया है। हमारे बाप दाऊद का बाप, जस्सी का खानदान टुंड में बदल गया, ट्री नहीं रहा बाकी। वृक्ष कट गया, काट दिया यहोवा ने। यहोवा कितना करुणामयी है, उसने दाऊद से वादा किया है कि तेरे सिंहासन पे मैं बिठाऊंगा, हमेशा के लिए तेरी राजगद्दी को कायम रखूंगा। यहोवा का रूह कैसे काम करता है। हालेलुया। मैं अभी जीनियोलॉजी में लेके चलूंगा, अभी वहां नहीं जा पाया मैं। यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में क्या भेद छिपा हुआ है। यूसुफ इसलिए गरीब है, मरियम भी शाही खानदान से है, दो वंशावलियां हैं, लेकिन यूसुफ गरीब है, गुर्बत है, लानत है। आपको मालूम, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यहोवा गरीबी का रूप भेजेगा श्राप के रूप में। अगर तुम यहोवा के पीछे नहीं चलोगे, यहोवा की विधियां को नहीं मानोगे, यहोवा अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करोगे, यहोवा अपने परमेश्वर की उपासना नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, पवित्रताई का जीवन नहीं जियोगे, धार्मिकता का जीवन नहीं जियोगे, न्याय के काम नहीं करोगे, गरीब विधवा अनाथों का न्याय नहीं चुकाओगे, अगर तुम फॉल्स, तुम्हारे तराजू जो हैं वो भ्रष्ट तराजुओं से तोलोगे, अगर तुम लूट खसूट का काम करोगे, यहोवा सजा देगा। देखिए यूसुफ पे, उसी घराने का है राजा दाऊद के घराने का यूसुफ। हालेलुया। तो सवाल ये है कि कोनिया जो है, कोनिया के ख़ानदान से कोनिया के ख़ानदान से यूसुफ आ रहा है, जो बढ़ई का, तरखान का काम करता है। होना इसे राजा चाहिए, लेकिन ये बेचारा टेबल कुर्सियाँ बना रहा है और बहुत गरीब है और अपनी बीवी को गधी के बच्चे पे लेके चला होगा, बड़ा लंबा सफ़र किया होगा। लेकिन इसकी बीवी मरियम की कोख में सृष्टि का मालिक है, कायनात को बनाने वाला है। हालेलुया। तो कैसे वो मरियम की कोख में आ गया, किस रीति से इस खानदान में उसका जन्म हो गया, जबकि इसके ऊपर तो श्राप है। हालेलुया। कल अगर सुबह नहीं मैं ये वचन कर पाया तो कल शाम को हम इसके ऊपर मनन करेंगे और इसके और भेद सीखेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना कीजिएगा और सुनिए मेरी बात। अगर आप में से किसी के दिल में प्रभु, मुझे कहने में भी कई बार संकोच होता है, आप प्रभु के लिए कुछ बोलना चाहें, अवश्य बोलना चाहिए। परमेश्वर के वचन को सुन के प्रभु के लिए कुछ अवश्य बोलना चाहिए।
ताकि उस सुने हुए वचन के ऊपर आशीष आके ठहर जाए। तो अवश्य बोइएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप बो सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। सबको जय यीशु मसीह की।